Hello everybody. Today we are going to discuss important topic biogeochemical cycle. इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं. What is biogeochemical cycle? Biogeochemical cycle, the cycle of going physical elements from environment to living organisms and again coming to environment from living beings after their death and decomposition is known as biogeochemical cycling. जब साइकिलिंग में फिजिकल एलिमेंट्स इन्वायरमेंट से होते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म तक और अगेन इन्वायरमेंट से फिर फिजिकल एलिमेंट्स इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ और डिके या डिकम्पोजिशन के पश्चात इन्वायरमेंट में वापस लौटने की जो साइकिल होती है, इस साइकिल को कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग. बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग जिसे कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी कहते हैं. बायोजियोकेमिकल साइकिल, the biogeochemical cycle atmosphere constitutes the major reservoir of the elements that exist there in a gaseous phase. The physical matter present in environment such as water, soil and air constitute the body of living organisms. These physical matter after death and decomposition of living being again reach the environment. The important element found in biosphere which constitute the plant and animal body are carbon, oxygen, nitrogen, calcium, phosphorus, hydrogen, sulfur, sodium, potassium, magnesium, iron, manganese, cobalt, copper, zinc, boron and molybdenum. That is called biogeochemical cycle. The biogeochemical cycle are basically of following three types. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं, ये वाटर का मूवमेंट शो करता है. सेकेंड होता है गैसियस साइकिल. गैसियस साइकिल्स ये केमिकल्स का मूवमेंट शो करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. और थर्ड होता है सेडिमेंट्री साइकिल. सेडिमेंट्री साइकिल मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स का होता है. इसमें केमिकल एलिमेंट्स का मूवमेंट होता है सेडिमेंट्री साइकिल में, सच एज सल्फर, फास्फोरस. कार्बन साइकिल, सबसे पहले हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में. कार्बन साइकिल Carbon is the most important element in the biological system and constitute about 50% of all living organisms. Carbon dioxide present in the atmosphere or dissolved in water is the ultimate source of organic carbon compounds occurring in nature. The cycle of carbon in nature comprises two main processes. First होता है conversion of oxidized form of carbon dioxide into produced organic form. ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के थ्रू फर्स्ट साइक्लिंग होती है. कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं. और सेकेंड होता है restoration of original oxidized form through mineralization of the organic form formed by the microorganisms. First, the conversion of oxidized from carbon into reduced organic from photosynthetic organisms. First है photosynthetic organisms. Carbon dioxide is reduced into organic carbon compounds mainly by the process of photosynthesis. Photosynthetic algae and higher plants
are the most important against agents of carbon dioxide fixation. In the ocean, the major plants form that fix carbon are the free floating microscopic algae called phytoplankton. They are estimated to fix annual about 1.2 into 10 power 10 tons of carbon. Nearly 1.5 to 10 to the power 10 tons of carbon is said to be fixed annually by photosynthetic terrestrial plant life. Besides, autotrophic and heterotrophic bacteria are also capable of synthesizing organic matter from inorganic carbon. In the occurrence of photosynthesis among microorganisms, the latter also represent the example of carbon dioxide fixation into organic compounds. फर्स्ट है द कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट द सोलर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. द लेटर फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोहाइड्रेट बाई ए रिडक्शन रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्राइज होकर के ये कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करता है रिडक्शन डिवीजन के थ्रू. सेकेंड होता है सेकेंड प्रोसेस जो होती है ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, जिसमें पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिसिटिक एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. सेकेंड प्रोसेस होती है रीस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म carbon dioxide through mineralization of the organic form. One can consider three different modes through which is the organic matter is mineralized and the carbon dioxide is released in the atmosphere. They are process of respiration. तीन डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसके द्वारा कि ऑर्गेनिक मैटर का मिनरलाइजेशन होता है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. फर्स्ट प्रोसेस होती है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सेकेंड होती है कंबस्टन यानी बर्निंग और थर्ड होती है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द accidental intentional burning of plants and their parts result in the breakdown of organic carbon compounds releasing carbon dioxide in the atmosphere. पहली प्रोसेस जो रेस्पिरेशन प्लांट्स या एनिमल करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं उनके थ्रू, या फिर प्लांट्स के डेथ के बाद कंबस्टन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में जाती है. सेकेंड प्रोसेस होती है थर्ड प्रोसेस होती है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डीकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो होता है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स इवेंचुअली आर डिपॉजिटेड इन द सॉयल आर डिग्रेडेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेनली द बैक्टीरिया एंड फंजाई. द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू द एयर एंड सॉयल, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो सॉयल में डिग्रेडेट होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ के थ्रू ये यानी कि जिसमें कि मेनली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं डिग्रेडेशन करते हैं डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है. ये डिकम्पोजिशन थ्री टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है सेलुलोज डिकम्पोजिशन. सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्लांट्स. सेलुलोज जो है अबेंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट का होता है. इट इज़ रीडली अटैक्ड बाय मैनी स्पीसीज ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो कि बहुत सारे फंजाई और बैक्टीरिया के थ्रू होता है. द प्रोसेस ऑफ सेलुलोज डिकम्पोजिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा कि सेलुलोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होकर के कैसे होता है.
सेलुलोज जो होता है एंजाइम सेलुलेज के थ्रू जो होता है डिकम्पोजिशन के होता है और सेलोबायस बनता है। सेकेंड प्रोसेस में सेलोबायस जो होता है एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज एंजाइम सिस्टम ऑफ मैनी माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स के एंजाइम सिस्टम के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट के रूप में ये डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। दूसरी डिकम्पोजिशन होता है हेमी सेलुलोज डिकम्पोजिशन। हेमी सेलुलोज डिकम्पोजिशन पहला है सेलुलोज का डिकम्पोजिशन, जो कि सेलुलोज जो होता है लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एंड प्रोडक्ट के रूप में डिकम्पोज हो जाता है। द फंजाई विच डिकम्पोज सेलुलोज इन सॉयल आर मेनली ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम, चिटोमोनियम, वेट्सिसिलियम, राइजोक्टोनिया, मार्कोसिटिया, मेनिल्डस, प्लूरोटस, फेमस। द बैक्टीरिया डेट ब्रिंग, ये जो फंजाई थे ये जो है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करते हैं, जो सेलुलोज का डिकम्पोजिशन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द बैक्टीरिया डेट ब्रिंग अबाउट सेलुलोज डिकम्पोजिशन इन सॉयल कंसिस्ट ऑफ मेनली द स्पीसीज ऑफ क्लास्ट्रीडियम, सेलुलोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसिस, साइटोफेगा, बैसिलस, स्यूडोमोनास, नोकार्डिया, माइक्रोस्पोरा, स्पायरोकेटिया, पॉलीगेनम और कॉलीफेलिकुला, ये सभी बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड होता है हेमी सेलुलोज का डिकम्पोजिशन। हेमी सेलुलोज का डिकम्पोजिशन जो होता है, हेमी सेलुलोज आर द पॉलीमर ऑफ सिंपल शुगर सच एज पेंटोज, लैक्टोज एंड यूरोनिक एसिड। The decomposition of hemicellulose by microorganisms takes place through the agency of extracellular enzymes called hemicellulases. हेमीसेलुलेजेज एंजाइम्स के थ्रू कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं, कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, इनका डिकम्पोजिशन करते हैं। हेमीसेलुलोज जो होता है एक शुगर का सिंपल पॉलीमर होता है जो कि पेंटोजेज और लैक्टोजेज या यूरोनिक एसिड के रूप में होता है। द फंजाई डेट डिग्रेड हेमीसेलुलोज इन सॉयल, फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा, फ्यूजेरियम, ह्यूमिकोला। कुछ बैक्टीरिया भी हेमीसेलुलोज के डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, सच एज बैसिलस, स्यूडोमोनास, साइटोफेगान, विब्रियो, इर्विनिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस आर द बैक्टीरिया दैट डिग्रेड द हेमीसेलुलोजेज इन द सॉयल। थर्ड टाइप का डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है लिग्निन डिकम्पोजिशन। लिग्निन इज द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट constituent of the plant. It is highly resident of microbial degradation. However, certain fungi, for example aspergillus fungi, aspergillus, penicillium, fusarium, क्लेबिफोरा, पॉलीपोरस एंड कुछ बैक्टीरिया भी इसमें लिग्निन का डिकम्पोजिशन करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, फ्लेवोकेटिया, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, माइक्रोकाकस आर नोन टू डिग्रेड लिग्निन टू स्लो रेट। यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो होता है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के थ्रू जो होता है, डिकम्पोजिशन के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। पहला सेलुलोज का डिकम्पोजिशन होता है। सेलुलोज जो होता है एंजाइम सेलुलेज के थ्रू सेलोबायस में चेंज होता है, सेलोबायस ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज जो होता है डिग्रेड होकर के माइक्रोब्स के एंजाइम सिस्टम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। हेमीसेलुलोज ये भी जो होता है शुगर का
पॉलीमर होता है जो कि फंजाई और बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। थर्ड जो लिग्निन होता है, ये भी प्लांट का मेन प्रोडक्ट होता है, मेन अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो कि ये जैंथोमोनास, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम के थ्रू जो होता है डिकम्पोजिशन करके, ये जो होता है डिग्रेडेशन के थ्रू ये वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल चलती रहती है, ये गैसियस साइकिल कहलाती है। अब इसको हम फिगर के थ्रू शो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस जब करता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। इन प्लांट्स को एनिमल्स फीड करता है या माइक्रोब्स फीड करते हैं, जिसके द्वारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में एनिमल्स और माइक्रोब्स की बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर ये प्लांट्स, एनिमल या फिर माइक्रोब्स के डेथ या डिकेइंग के बाद या फिर एक्सक्रीशन के थ्रू ये वापस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में सॉयल या वाटर में डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर इनके प्लांट, एनिमल या एनिमल माइक्रोब्स के रेस्पिरेशन के थ्रू ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सॉयल या वाटर में होता है, ये सॉयल वाटर में रहने वाले माइक्रोब्स के रेस्पिरेशन के थ्रू ये वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। या फिर कंबस्टन, फॉसिल फ्यूल का कंबस्टन जब होता है, फॉसिल फ्यूल जब जलाए जाते हैं, जब बर्निंग होती है या एक्सीडेंटल बर्निंग होती है, तो एक्सीडेंटल बर्निंग के थ्रू फॉसिल फ्यूल के जलने से या एक्सीडेंटल बर्निंग के थ्रू ये जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉयल या वाटर में जो होता है, ये मीथेन के रूप में डिपॉजिट होता है। माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो कि सॉयल वाटर में होता है, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन के थ्रू ये फिर से डिकम्पोजिशन करके ये वापस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में पहुंच जाता है। यानी कि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो साइक्लिंग होती है, ये मेन 2 प्रोसेस में होती है, जिसमें फर्स्ट होती है कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक फॉर्म, और सेकेंड होता है रीस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू मिनरलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फॉर्म, जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है रिलीज होना, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, और जो कि ऑक्जेलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। और रीस्टोरेशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मिनरलाइजेशन के थ्रू जो होता है 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू, कंबस्टन के थ्रू, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। डिकम्पोजिशन 3 तरह का होता है, सेलुलोज का डिकम्पोजिशन के थ्रू, हेमी सेलुलोज डिकम्पोजिशन के थ्रू, या फिर लिग्निन डिकम्पोजिशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है साइक्लिंग मेंटेन होती है। इस तरीके से ये साइकिल कार्बन की लगातार चलती रहती है, जिसको कि गैसियस साइकिल भी कहते हैं। दूसरी साइकिल होती है, नेक्स्ट साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, you know, atmosphere is the reservoir of nitrogen and contains nearly 79% of nitrogen. Most of the organisms are unable to use the atmospheric nitrogen. Plants and other living beings can utilize atmospheric nitrogen in the form of nitrate and food. In the atmosphere, the gaseous nitrogen combine with hydrogen or vapors by the energy produced due to electric thunder. As a result, atmospheric nitrogen get changed into nitrate, which reaches on soil and get absorbed by plants. The fixation of atmospheric nitrogen also takes place by symbiotic or non-symbiotic bacteria, actinomycetes
yeast and blue-green algae. In this way, the nitrogen fixation takes place either chemically or biologically, and nitrogen reaches to the soil in the form of nitrates or ammonia.